And this is foundational or principle of the doctrine of Christ. और ये बुनियादी बातें या मूलभूत सिद्धांत मसीह के हैं। Okay, so no other foundation can be laid than that which is laid, which is Jesus Christ. और कोई नींव नहीं डाली जा सकती, जो डाली गई है वो मसीह ही है, And मसीह so है। what you're studying is that foundation that's in you today. और जो हम लोग सीख रहे What हैं, you're studying is that foundation that is in you today. और जो हम सीख रहे हैं वही नींव है जो हम में डाली गई है, जो हम लोग सीख रहे हैं। So let us recap what we studied last week. और Yeah. पिछले हफ्ते जो हमने सीखा था उसका एक सारांश देखें। So we understood that we are a spirit being. We live in a body and we have a soul. और हमने ये सीखा था कि हम एक आत्मा जीव हैं। मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास एक प्राण है, मैं अपनी देह में रहता हूँ। You understand? So we are a spirit being. मैं एक आत्मा हूँ। And we have a soul. और मेरे पास में प्राण है। And I live in this body. और मैं इस शरीर में जीवित हूँ। When I am born again, I am born of water and of the Spirit. और जब मैं पुनः जन्म पाता हूँ तो मैं जल और आत्मा से जन्म लेता हूँ। And I explained to you what jal is. Jal is the word of God. We are born of the incorruptible word and we are born of the Spirit of God. और मैंने सिखाया था पिछले हफ्ते कि जल क्या है, परमेश्वर का वचन है, और वो वचन कभी नाशवान ना होने वाला और स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। And we have been born again of the word and of the Spirit. और हम लोग नया जन्म वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा पाते हैं। Okay, and then we started with baptisms, which is the third doctrine. और हमने तीसरा जो सिद्धांत है वो बपतिस्माओं का, उसके ऊपर सीखना आरंभ किया। So we understood that it is baptismao is more than one baptism. वहां पर जैसा जिक्र है वह शब्द बपतिस्माओं यानी एक से बढ़कर है। Okay, and we studied that the word baptism comes from a industry word where you are dyeing clothes. और जो बपतिस्मा शब्द का जो मूल अर्थ या उसका अर्थ को अगर हम समझ पाते तो वो था कि So the white cloth lost its identity and now it gets a new identity which is blue cloth. और वो सफेद कपड़ा अब वो अपने पहचान को खोकर एक नई पहचान में आ जाता है और वो नया रंग नीला है। The white cloth takes the identity of the blue liquid, now becomes blue cloth. और ये सफेद कपड़ा नए रंग नीले को अपने ऊपर चढ़ा लेता है और वो एक नई पहचान में आता है। So you no longer call it a white cloth, now you call it a blue cloth. अब उसे आप सफेद कपड़ा ना पुकारते हैं परंतु उसे एक नीला कपड़ा ही कहते हैं। This is baptism. और ये बपतिस्मा है। And we study that there are 3 kinds of baptisms. और हमने 3 प्रकार की बपतिस्माएं उसके विषय में सुना। We understood that first baptism is baptism into the body of Christ. और पहला बपतिस्मा है मसीह के देह में यानी मसीह के शरीर में बपतिस्मा। That we have become part of the body of Christ. और कि हम मसीह के देह के भागी हो जाते हैं। Yeah, and in any baptism activity there is a person who baptizes you. और इस बपतिस्मा लेने के कार्य में एक व्यक्ति होता है जो आपको उस बपतिस्मा को देता है। And that is the Holy Spirit in this case. और इस जगह पर वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। The Holy Spirit baptizes you into the body of Christ. और पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो मसीह के शरीर में आपको बपतिस्मा देता है। Understood? So it is, and last week we studied, it is the work of the Holy Spirit to work with your conscience and convict you of sin, righteousness, and judgment when you hear the gospel.
और जब आप सुसमाचार को सुनते हैं, पिछले हफ्ते में हमने इसके विषय में विचार किया था, जब आप सुसमाचार को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके विवेक, आपके पाप के विषय में कायरता और परमेश्वर के उद्धार और आने वाले न्याय के विषय में आपको चिताता है। And when you get convinced, you believe in your heart, and then you confess with your mouth, and you are saved. और जब आप इस बात को समझ लेते हैं और आप अपने मन में विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, तब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं। And the salvation that was bought, which was bought and paid for 2000 years ago, now you receive it. और वो उद्धार जो खरीदा गया, यानी उसको मोल देकर लाया गया 2000 वर्ष पहले, अब आप उसे ग्रहण करते हैं। Yeah, so you receive it, and now you are now part of the body. और आप उसे ग्रहण करते हैं और आप मसीह के शरीर के भागी हो जाते हैं। Yeah, and the second baptism is the baptism unto repentance. और दूसरा बपतिस्मा जो है वो मन फिराव का बपतिस्मा है। Now we have to understand the first baptism, that is baptism into the body of Christ, has happened in your spirit. और पहला बपतिस्मा जो हुआ, यानी मसीह के शरीर में जो बपतिस्मा है वो आपकी आत्मा में हुआ, इसको जानना है। So because it's happened on the inside, you don't see any physical changes on your body. क्योंकि वो आपके मन के अंदर हुआ, यानी आंतरिक मनुष्यत्व में हुआ है, उसका कोई शारीरिक प्रकटीकरण आप नहीं देख सकते हैं। You understand? You did not suddenly become thin after accepting Jesus Christ as Lord and Savior. आपने मसीह को ग्रहण किया तो तुरंत आप मोटे थे और तुरंत पतले हो गए, ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। Yeah, so there's no physical change. कोई शारीरिक बदलाव नहीं है। You understand? Before you used to like dal and rice. Now it's not like now you don't like dal and rice. ऐसा है जैसे पहले आप दाल और चावल बहुत पसंद करते थे, अब मसीह को ग्रहण कर लिया तो अब आपको दाल चावल पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। Yeah, so this is a work that has happened in the spirit, because it is the spirit that gives birth to the spirit. और ये आत्मा में हुआ है और आत्मा के द्वारा हुआ है, तो आत्मा में वो नया जन्म आपको देता है। You understand? But now no one else knows that you have been born again. किसी को भी ये पता नहीं है कि आपने नया जन्म प्राप्त किया है। The baptism into the body of Christ is a very private matter, personal matter. और मसीह के शरीर में बपतिस्मा लेना ये एक व्यक्तिगत विचार और व्यक्तिगत निर्णय है। You understand? Because of that, no one else, your family doesn't know, your wife and children do not know, your pastor does not know, and your enemies do not know. No one knows about it. और ये जो जीवन के अंदर आपके हुआ, आत्मा में जो हुआ है, वो किसी को भी नहीं पता है, ना आपके परिवार में, ना आपके बच्चों को, ना आपकी पत्नी को, ना आपके पासबान को, ना शत्रुओं को भी नहीं पता है। You understand? However, baptism unto repentance is that activity where you proclaim and tell the world that you have what has happened in your spirit. और मन फिराव के लिए जो बपतिस्मा है वो लोगों के सामने बखान करने के समान है कि जो आपके आत्मा में हुआ है उसको मैं सबके सम्मुख की मन फिराया है, मैंने उसको प्रकट करा। You make a public confession to the whole world, to angels, to demons, and to the whole church that you are now born again. I have repented of my sin. I have accepted Christ as my Lord and Savior. और क्या कर रहे हैं आप दुनिया के सामने आपके मन के अंदर जो अपने मन फिराया कि मैंने अपने पापों से क्षमा मांगा हूं, मसीह को ग्रहण किया हूं, उस चीज को आप लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं। और आप ना केवल पूरे संसार के सम्मुख परंतु अपने लोगों के बीच में, कलीसिया के बीच में और स्वर्गदूतों के सम्मुख और शैतान की जो सेना है उसके सम्मुख भी आप अपने मन फिराव का जो प्रकटीकरण है उसको करते हैं। That is why, because
it has to be done publicly. That is why it's a very physical activity. क्योंकि ये लोगों के सामने यानी सब लोगों के सामने किया जाने वाला एक कार्य है, इसीलिए इसके अंदर एक शारीरिक प्रकटीकरण होता है। So in the Word of God, there are two activities that we do as a result of our confession. परमेश्वर के वचन में शारीरिक रूप में जो हम मन में विश्वास करते हैं उसका शारीरिक प्रकटीकरण दो प्रकार के हैं। One is the baptism, the other one is the Holy Communion. पहला है बपतिस्मा लेना और दूसरा है मेज में शामिल होना यानी पाक शराकत लेना। Yeah, but so today we'll study more about baptism unto repentance. और आज हम लोग मन फिराव के लिए बपतिस्मा के विषय में ज्यादा बातचीत करेंगे। Understood? Because accepting Jesus Christ as your Lord and Savior is a personal matter, but now you declare to the world that now you are a follower of Christ, that you have witnesses, you have people witnessing your repentance. और आपने मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया, वो आपका व्यक्तिगत विचार और व्यक्तिगत निर्णय है। अब आप मन फिराव के बपतिस्मे का लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं, यानी आपके आसपास जो लोग हैं उनके सामने आप क्या कह रहे हैं? मैंने इस निर्णय को अपने जीवन में लिया है, प्रकट कर रहे हैं। Okay, now let us look, before we get into that, let us look at some few scriptures. Now that we are in the body of Christ, we'll have to look at some scriptures. 1 Corinthians 12:27. अब हम अब मसीह की देह में हैं, तो आइए हम लोग कुछ बातों को, कुछ वचनों को इसके विषय में, इसके संदर्भ में पढ़ लेते हैं Before we get into water baptism. इससे पहले कि हम पानी के बपतिस्मे की ओर जाएं। Okay, 1 Corinthians 12:27. पहला कुरिन्थियों 12:27। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। Yeah, let's look at Romans chapter 12 verses 5. आइए रोमियो 12:5 को भी देखें। वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। Yeah, and finally let's look at 1 Corinthians 12:13. और पहला कुरिन्थियों 12:13 को भी हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। So we have one body, we have been given one spirit to drink. और हमारे पास एक ही देह है और एक ही आत्मा हमें पिलाया गया है। Yeah, and in this body, who is the head? और इस शरीर में सिर कौन है? We read the word of God says that Christ is the head. और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि मसीह है जो इसका सिर है। That's in Colossians chapter 1:18 that says, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. और पहला कुलोसियों 1:18 में ये हम पढ़ते हैं, इस देह अर्थात कलीसिया में वो प्रधान है, यानी वो सिर है और वो सिर मसीह है। In Ephesians 5:23, we read that the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. In Ephesians 5:23, we read, husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and the Christ is the savior of the body. और इफिसियों 5:23 में भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि अपनी पत्नी के ऊपर उसका पति ही प्रमुख है, वैसे ही जैसे हमारी कलीसिया का सिर मसीह है। Understand? So we now see, and so when we are baptized into the body of Christ, this image is kind of, we are part and every member in the body of Christ, where Christ is the head. और देखिए तस्वीर में कि ये मसीह का देह है और उसके हम भागी हैं और उसका सिर कौन है? मसीह है। Okay, and then and in Ephesians chapter 2 verses 5 and 6 is something. This is when a person is born again, immediately this is where he is seated.
और एक व्यक्ति जब मसीह को ग्रहण करता है वो तुरंत इस स्थान पर आकर बैठ जाता है on the right hand side of the Father, और वो है पिता के दाहिने हाथ में, because Christ is seated on the right hand side of the Father, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर विराजमान and we are in Christ. और हम मसीह में हैं। Let's read that scripture. आइए हम उस वचन को पढ़ें। Ephesians chapter 2 verse 5 and 6. इफिसियों 2, 5 और 6, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। Now you have to understand, this affects our prayer. और इसको हमें जानने की आवश्यकता है, ये हमारी प्रार्थना में कार्य करता है। We are not praying upwards to heaven. हम लोग स्वर्ग की ओर प्रार्थना नहीं कर रहे, ऊपर की ओर प्रार्थना नहीं कर रहे, Upar, not upar. We pray sideways. और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बगल की ओर प्रार्थना कर रहे हैं। We are praying in the Spirit. हम लोग आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं We pray according to the Word, और वचन के अनुसार प्रार्थना and करते He हैं, hears us. और वो हमें क्या करता है, बगल में जो है वो सुनता है। There is no demonic influence that is going to stop our prayer. और कोई भी शैतानी ताकत हमारी प्रार्थना में विघ्न नहीं डाल सकती। In the case of Daniel, there was the prince of Persia in the air. और दानियल के उस संदर्भ में, उस समय में जो पर्शिया का जो दुष्ट आत्मा था वहां पर काम में था, So he was battling so that the prayer won't go through. और वो युद्ध कर रहा था कि वो उसकी दुआ ऊपर ना चली जाए। Okay. However, the Bible says in Ephesians chapter 1, परंतु बाइबल कहती है इफिसियों के 1 अध्याय में verses 20. और उसका 20वां पद, इफिसियों 1 का 20, Yeah. Which he wrought in Christ when he raised him from the dead. Let's look at the verse 19 onwards. Let's read 19 to 23. आइए हम लोग 19 से 23 पद की ओर पढ़ेंगे। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। Did you see that? Now Jesus is on the right hand in heavenly places. यीशु मसीह दाहिनी ओर है, स्वर्गीय स्थानों में विराजमान होते हैं, Above all principality, power, might, dominion. और इस संसार के सारी प्रभुता और सामर्थ और अधिकार और प्रधानता के ऊपर, Every wicked demon and principality and dominion. और हर एक दुष्ट प्रधानता और अधिकार और सामर्थ के ऊपर। And we are seated in Christ in that heavenly place. और हम मसीह के साथ में उस जगह पर बिठाए गए हैं। So our prayers are not fighting through that opposition in the air to reach heaven. और वो जो हवा में वो उपद्रव करने वाले, विघ्न डालने वाले लोगों के बीच से प्रार्थना हमारी नहीं जा रही। We are seated above them in heaven in Christ Jesus, praying directly in the Father in Jesus' name. और हम मसीह के साथ में उसके बगल में दाहिनी ओर उस अधिकार में बिठाए गए, उन प्रधानताओं के ऊपर। अब हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम मसीह के साथ में पिता के पास में हमारी प्रार्थना होती है। You understand? And so where are all the demonic influence and the prince of Persia and all of those things that we see in Old Testament? Under our feet, way under our feet. और ये सारी जो प्रधानता, दुष्ट आत्मा की सामर्थ और पुराने नियम के अंदर जो पर्शिया जो राजा है उसकी ताकत, वो सब कुछ हमारे पैरों के नीचे है, Way under our feet.
हमारे पैरों के बहुत नीचे, because we are exalted into heavenly places in क्यों? Christ Jesus. मसीह यीशु में हमें परमेश्वर ने ऊंचे स्थानों में बिठाकर जिलाया है। This is not going to happen. ये होने वाली बात नहीं This है, has already happened. ये हो चुकी हुई बात है। You understand? So do not have this as the doubt in your heart, because this is the reality of your spirit being. और इसको आप एक संदेह के रूप में ना देखें, ये आपकी आत्मा में हो चुका काम है। Understood? So our prayers in Jesus' name, according to the word of God, in the love of God, has answers. और हमारी प्रार्थनाओं का मसीह के वचन के अनुसार, मसीह के प्रेम में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Okay? So let's get into the baptism unto repentance. तो आइए हम लोग मन फिराव के लिए बपतिस्मा के ऊपर ध्यान करें। Okay? And you have to understand the baptism unto repentance, there is a baptizer. सो पानी का बपतिस्मा यानी मन फिराव के बपतिस्मे के अंदर एक व्यक्ति कार्यरत होता है। It can be a disciple or it can be any church leader. वो कोई भी शिष्य हो सकता है या कोई कलीसिया का अगुवा हो सकता है। The Bible says that the work of the ministry is done by the believers. और वचन कहता है इस सेवा का विश्वासियों से ताल्लुक है। You understand? And it is the gifts in the body of Christ that equips the believers to do the work of the ministry. और विश्वासियों के अंदर विश्वास के ये बहुमूल्य वरदान उन्हें तैयार करते हैं कि विश्वास की सेवा को कर सके। The gifts in the body of Christ are the fivefold ministry. और मसीह की देह में 5 सेवा के वरदान हैं। You're familiar with them: apostle, pastors. और आप इससे परिचित हैं। प्रेरित, Apostle, pastors, teachers, prophets, evangelists. 5. और ये 5 सेवाएं हैं: प्रेरित, पासबान, शिक्षक, टीचर। Yeah, and these fivefold ministry gifts, these are gifts by Jesus. और ये यीशु के द्वारा 5 वरदान कलीसिया के अंदर दिए गए हैं। They are for the equipping of the saints. और ये दिए गए हैं कि जो विश्वासियों को क्या करें, बढ़ाने के लिए, So that the saints do the work of the ministry. कि जो विश्वासी हैं या बनाए हुए संत हैं वो इस सेवा को कर सकें। So why did I say this? Because water baptism is done by any disciple and any person in church leadership. और क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं कि बपतिस्मा देने के कार्य में विश्वासी और जो कलीसिया के अगुए हैं उनको इस काम के लिए तैयार किया गया है। Because we see examples in the Bible where disciples were baptizing. Yeah, Jesus did not baptize, but his disciples baptized. और वचन के अनुसार कुछ वचनों को पढ़ते हुए भी अगर हम समझ सकें, और हम ये भी पाते हैं कि शिष्य थे जो बपतिस्मा दे रहे थे। यीशु मसीह ने बपतिस्मा नहीं दिया, परंतु you see Philip baptizing the Samaritans. You see Philip baptizing the Samaritans and the Ethiopian eunuch. और आप पाते हैं कि जो फिलिप है उसने समरियों को और वो जो रथ के ऊपर जाता था उसको बपतिस्मा दिया। You understand? And Philip, before he became Philip the evangelist, he was Philip the table server. और जो फिलिप है वो बुलाए जाने से पहले मेज का सेवा करता था, अब वो एक सुसमाचारक प्रचारक हो गया है। You understand? So the baptism unto repentance or water baptism is done by any disciple and any church appointed leader. और पानी का बपतिस्मा देने की सेवा कि एक कोई भी शिष्य या कलीसिया के द्वारा निर्धारित कोई भी अगुवे के द्वारा किया जाता है। Now, because it says here in Matthew 28:19 to 20, और मत्ती
18 से 19 में लिखा गया है। Verse 19 and 20, it reads, Go ye therefore. This is Jesus commanding the 11 disciples to go ye therefore and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and of the Holy Ghost. और यहाँ पर मत्ती 28 के 19 से हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। यीशु मसीह उन्हें महान आज्ञा दे रहे हैं उन 11 शिष्यों को कि वो जाकर चेले बनाएं। So this is a command of the Lord. First and foremost, this is a command of Lord Jesus Christ. और ये एक आदेश है, यानी एक आज्ञा है मसीह यीशु के द्वारा। You cannot escape this. आप इससे बच नहीं सकते, You got to do it. इसे आपको करना ही होगा। Okay, let's look at Mark chapter 16. आइए मरकुस 16 को देखें। We will see that Mark recorded something extra. आप इधर देखेंगे कि मरकुस ने थोड़ा और उसमें जोड़कर कहा। And Jesus said unto them, Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believes and is baptized shall be saved, but he that believes not shall be damned. और यहाँ पर लिखा है 15 से आगे, और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। So how can you lose your salvation? आप कैसे अपने उद्धार को खो सकते हैं? How can you not receive a salvation? कैसे आप उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते? If you do not believe. अगर आप विश्वास नहीं करेंगे। So so can children get water baptism? क्या बच्चे पानी का बपतिस्मा प्राप्त कर सकते हैं? No, they have to believe first. नहीं, उन्हें क्या करना पड़ेगा? पहले विश्वास करना पड़ेगा And then be baptized. और फिर बपतिस्मा लेना है। Okay, so if a child is not believing, अगर if the एक Yeah. बालक अगर विश्वास नहीं कर रहा है, he is not born again, वो नया जन्म प्राप्त नहीं कर रहा है। and he should not be baptized. और Do you got the idea? क्या आपको ये विचार सामने आ गया, समझ आ रहा है कि उसको बपतिस्मा नहीं देना है? So then the other question that comes is that if I believe, so दूसरा सवाल आता है, अगर मैं विश्वास कर रहा हूं and if I die, और मैं अगर मर जाता हूं, do I go to heaven क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा before taking water baptism? मैंने पानी का बपतिस्मा नहीं लेने से पहले? Yes. हाँ। You understand? Because the word of God says, if you do not believe, बाइबल क्या कहती है? अगर तुम विश्वास ना करोगे, you will be damned. आप दोषी ठहराए जाओगे। So what is the prerequisite for, or what is the requirement for salvation? So उद्धार की मांग क्या है? It is believing in your heart, confessing with your mouth. वो है मन में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। With that you receive salvation. उससे आप क्या पाते हैं? आप उद्धार प्राप्त करते हैं। You are now in the body of Christ. आप मसीह की देह में हैं। And if you die immediately after that, अगर आप इस काम को करने के तुरंत बाद मर जाते हैं, you're in heaven. आप स्वर्ग में हैं। You understood? The reason why this is very important is, ये क्या कारण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। because people emphasize water baptism. क्योंकि पानी के बपतिस्मे के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है लोगों के द्वारा, rather than the believing in the heart and confessing with your mouth. इसकी बजाय कि हृदय में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करने से। Understand this thing, that believing in your heart and confessing with your mouth is salvation. देखें, याद रखें, मन में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना ही उद्धार है। Baptism is a requirement after you do that. बपतिस्मा की मांग उस विचार को करने के बाद में है। You understand? It is a command of the Lord. और ये परमेश्वर का आदेश है। It is not the requirement for salvation. ये उद्धार की मांग नहीं है। You understand? Let's look at that scripture. The reason why is people say that only if I believe in my heart, confess in my mouth, and take water baptism, I shall be saved. और
क्यों कर लोग जब ये कहते हैं कि मुंह से हृदय से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना और पानी का बपतिस्मा लेने से ही तुम्हारा उद्धार होगा? You understand? But the word of God says, when you believe in your heart and confess with your mouth, you are saved. क्योंकि वचन क्या कहता है, यदि तू मसीह को अपने मन में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो तू उद्धार पाएगा। You are in the body of Christ. आप मसीह की देह में हैं। You are seated in heavenly places in Christ Jesus. आप मसीह के साथ में स्वर्गीय स्थानों में You are saved. आप बचाए गए हैं। You understand? Look at this in verse 10. Romans 10:10. और इसको हम लोग रोमी 10:10 के अंदर पाते हैं। For with the heart man believes unto righteousness. क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है And with the mouth confession is made unto salvation. और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। You understood? But where is the baptism here? तो यहां पर बपतिस्मा कहाँ है? The baptism is a command. बपतिस्मा एक आदेश है। See, Jesus said, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. देखिए यीशु ने क्या कहा कि उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। You understand? So baptism, water baptism is the commandment of the Lord as soon as you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके बाद में मसीह का वो आदेश है जिसको पूरा करना है, वो है बपतिस्मा। Then the question comes, why this is baptism of repentance for the remission of sins. Let's look at that. Mark chapter 1 verse 4. सो ये मन फिराव का बपतिस्मा है। तो इसको हम मरकुस 1:4 के अंदर देखें। John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करता था। For the remission of sins. वो है पापों की क्षमा के लिए। You understand? Now, you have to understand this, that then if it was for the Shema of the papom, why did Jesus take water baptism? अगर आपको इस बात को समझना है, अगर पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा है तो फिर यीशु मसीह ने क्यों पानी का बपतिस्मा लिया? You understand? Because Jesus was born without sin. क्योंकि यीशु मसीह तो पाप रहित जन्मे थे। Because of the virgin birth of Jesus. और वो कुंवारी का जन्म था। You understand? So why did Jesus take water baptism? क्यों कर प्रभु यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया? Yeah, if Jesus who was born again, अगर यीशु मसीह no, sorry, that's the wrong word. If Jesus was born as a spirit being, अगर प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक जीव, आत्मा जीव के समान पैदा हुए, yeah, who had committed no sin, जिसने कोई पाप ना किया था, and he took the baptism of repentance, सो उसने मन फिराव का बपतिस्मा लिया, how much more we should do it? तो हमें कितना बढ़कर करना होगा? Yeah, Jesus who did no sin took the baptism of repentance. यीशु ने जिसने कोई पाप ना किया, उसने पानी का बपतिस्मा लिया। Yeah, how much more we should do? हमें कितना ज्यादा करना होगा? So it is righteousness. ये धार्मिकता है। You understand? And here are 3 reasons why Jesus took water baptism. 3 बिंदु हैं किस कारण प्रभु यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया। One is to reveal to Israel the Lamb of God who will take away the sin of the world. पहली चीज कि इस्राएल के सामने परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को ले जाता है प्रकट करे। Because John came as the forerunner of Christ. He came as the herald of Christ. King is coming, King is coming, King is coming. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो सामने आया, पहले आया, वो उसका मार्ग तैयार करने वाला, वो ये कहते हुआ है, राजा आता है, राजा आता है। He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है। And when Jesus took the water baptism and he came out of the water, the heavens opened and there a dove came and sat upon him. और जब यीशु ने came upon him.
जब यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया, तुरंत जब पानी से बाहर आया, आकाश खुल गया, स्वर्ग के द्वार खुल गए और दूत और पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई उसके ऊपर आ बैठा। So it is a very visual activity. और ये देखने वाला यानी दिखाई देने वाला एक काम हुआ। So the one purpose of the water baptism was to reveal to the world that he is the Lamb of God. पहली चीज कि ये दुनिया के यानी इस्राएल के सामने प्रकट करने वाला, दिखाई देने वाला काम था कि वो दुनिया का परमेश्वर का मेमना है। Let's look at the second reason. It's in Matthew chapter 3, मत्ती 3 अध्याय में verses 15 to 17. मत्ती 3 15 से 17 में, Yeah. And it says, let's read 15 alone for now. 15 को पहले पढ़ेंगे। यहाँ And Jesus answering said unto him, Suffer it before so now, for thus becomes us to fulfill all righteousness. यहाँ लिखा है, यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। Yeah. So the second reason why Jesus took the baptism of repentance is to fulfill righteousness. और दूसरा कारण क्यों उसने पानी का बपतिस्मा लिया वो था कि धार्मिकता की वो बात को पूरा करे। Though he being God, he submitted to the Father. वो स्वयं परमेश्वर था, परंतु उसने परमेश्वर के अधीन अपने आप को कर दिया। You understood? He humbled himself to God and fulfilled all righteousness. उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया कि वो परमेश्वर के उस अधिकार because all men are subjected to God. क्योंकि हर एक मनुष्य परमेश्वर के लिए उसके अधीन होना है। All men should worship God. हर एक मनुष्य को, मनुष्य जाति को परमेश्वर की आराधना करना है। Every heart should submit to God. हर एक हृदय उसको समर्पित होना है। Every soul should submit to God. हर एक प्राण उसको देना है। Every body should submit to God. हर एक शरीर उसको समर्पित होना है। So Jesus came as an example saying, my spirit, soul and body is submitted to God. तो यीशु मसीह ने भी एक उदाहरण के रूप में मेरी आत्मा, प्राण और देह तुझे समर्पित है। You understand? And that is why to fulfill all righteousness, Jesus did that act. और सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को, so that it becomes an example for me and you. और मेरे लिए और आपके लिए एक उदाहरण बन जाए। Okay, verse 3. तीसरा वचन। Not verse 3, sorry. The point 3 is Jesus' baptism also demonstrated his own death, burial and resurrection to come. और यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना आने वाली उस घटना का भी विवरण था कि जो उसका स्वयं मृत्यु लेना और उसका गाड़ा जाना और उसका तीसरे दिन जी उठने के विषय में। You understand? So Jesus also was demonstrating that this is the plan of God for the salvation of mankind. और यीशु मसीह इस चीज का भी बखान कर रहे थे कि ये परमेश्वर का योजना है उद्धार के विषय में। So today when we study about water baptism, today we have another 10 minutes. We'll go through quickly and understand that when we take water baptism, our soul, our bodies, our whole being is now identifying that we were crucified with Christ, we are buried with him, now we are risen with him. और पानी का बपतिस्मा लेने के अंदर हमारे शरीर, आत्मा और देह, मन यानी प्राण, आत्मा, देह उस धार्मिकता के साथ में जुड़ जाते हैं जो मसीह के क्रूस के साथ में मारा जाना, पानी के नीचे गाड़ा जाना और उसके जैसे जी उठने के अंदर आ जाते हैं। So this work has happened in your spirit. So your spirit is born again. आपका आत्मा में उस काम को हुआ, वो काम हुआ था जब आपका आत्मा ने ग्रहण किया और वो नया जन्म प्राप्त किया। Your soul is understanding this new reality. और आपका प्राण या आपका मन इस नए चीज को समझ रहा है।
Okay, but your body has to now submit to God. और अब आपके शरीर को भी परमेश्वर के सम्मुख समर्पित होना है। You understand? So the whole, you can see in the image that the person, he goes into the water, he goes under the water, and then comes out as a new person. और देखिए अपनी तस्वीर में आपके सामने एक व्यक्ति है, वो तैयार होकर पानी की तरफ जाता है, पानी में जाकर पानी में डूबता है और फिर एक नई सृष्टि में वो बाहर निकलता है। He is a new born again believer on the inside. वो एक नया जन्मा हुआ एक व्यक्ति है आंतरिक मनुष्य में। Yeah, but when he's coming out of the water, he is declaring to the world, the one on the inside, I'm a new creature. और अब वो पूरे संसार के सम्मुख अपने आप को दिखाता है कि मैं जो अंदर से नया जन्म प्राप्त किया हूं। Yeah, I am a new creature on the inside. I've accepted Christ as my. So there is no washing of the body here. और हमने जो आंतरिक मन में नए जन्म को प्राप्त किया, परंतु शारीरिक रूप से हमारा शरीर का जल से साफ करना ना दिखाई पड़ा। You understand? The whole purpose of water baptism is not cleaning the body of all sin. पानी का बपतिस्मा का जो पूरा विवरण ये नहीं है कि पाप से हमारा वहां पर शुद्धिकरण होना। The Bible says the old man with his sin is crucified with Christ, and now you live with the new man. और बाइबल कहती है पुराना मनुष्य तो मसीह के साथ में क्रूसित हो जाता है और अब आप एक नए शरीर में आप। Let's look at 1 Peter chapter 3:21. पहला पत्रस 3 का 21 को देखें। पहला पत्रस 3 का 21। Yeah. उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इसे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। So it's the answer of a good conscience, of a good soul, a repented thinking towards God. और ये क्या है? विवेक में भी शुद्ध होना, शारीरिक और मानसिक तौर पर भी परमेश्वर को समर्पित करता हुआ एक विचार, एक नया सृष्टि है। It's a repentance of the heart, it's repentance of your deepest thinking to God. और ये हृदय के आंतरिक हृदय के अंदर मन फिराव और हमारे विचार यानी विवेकों के अंदर भी परमेश्वर के लिए फिराव का विचार It is not the removal of the filth in the flesh. ये शरीर पर होने वाला गंदगी का साफ करना नहीं। Understand? It is the confession or the answer of a good conscience towards God. ये परमेश्वर के उस जवाब में कि हमारा एक शुद्ध विवेक है। I hope you understand that. मैं सोचता हूं आप समझ रहे हैं इस बात को। So water baptism symbolizes, so what you see in the diagram, it symbolizes the death, you dying with Christ, you buried with Christ, and you resurrected with Christ. और इस तस्वीर में आप इस बात को समझ सकते हैं। देखिए तस्वीर में क्या है, आप मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और मसीह के साथ में गाड़े जाते हैं और मसीह के साथ में जिलाए भी जाते हैं। So it is not sprinkling of water on the head. ये सिर के ऊपर पानी का छिड़काव नहीं है। You go under the water. आप पानी के अंदर डुबकी लेते हैं। To symbolize that the old man is buried with Christ. वो दिखाते हुए कि आपका पुराना मनुष्य तो गाड़ दिया गया। And now when you come out of the water, so जब आप पानी से बाहर आते हैं, it symbolizes that now you are a new man, और resurrected in Christ Jesus. और वो ये दिखाता है कि आप एक नए मनुष्य हैं, मसीह में पुनरुत्थित एक नया सृष्टि हैं। Okay, so there are two things you have to understand. As a believer, so the person who's going into water baptism is a believer.
और आपको दो बातें जानने की आवश्यकता है, एक विश्वास के साथ में एक विश्वासी। Yeah. So the believer who is born again is doing water baptism. याद रखें, इस बात को साफ तौर पर समझें, एक विश्वासी यानी विश्वास रखने वाला एक विश्वासी मसीह के साथ में उस पानी के बपतिस्मे में जाता है। You understand? It is the born again believer who is doing water baptism. एक नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही पानी का बपतिस्मे में जाता है। You understand? It is not that when he takes water baptism he is saved. ये नहीं कि जब वो पानी का बपतिस्मा लेता है वो बच जाता है। Okay, I understand the order. आप इस क्रम को याद रखें, Because water baptism is the answer of a good conscience. It's the answer of a good conscience towards Christ. क्योंकि पानी का बपतिस्मा उस मन के शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ रखता है। So it is a confession. ये एक हमारा मन से एक कन्फेशन यानी हम मान लेने वाली बात है। Okay, it is a public display. वो खुलेआम सबके सामने प्रकट होने वाला काम है। Okay, so probably we can finish with one scripture. एक वचन से हम इस खंड को खत्म करेंगे। Okay, let's look at this. Acts chapter 8 verse 35 to 39. प्रेरितों के काम 8 अध्याय। This is the story of the Philip and the eunuch. और यहाँ पर फिलिपुस और उस यूनक यानी जो Ethiopian official, yeah, खोजा था, Ethiopian official. उसकी कहानी है, खोजा की कहानी है। Okay, Acts it reads here. Could you read it in Hindi? यस पर प्रेरितों के काम 8 अध्याय 35 पद से आगे। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इस शास्त्र से आरंभ करके उसने यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे तो तब खोजा ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करके ये आज्ञा दी कि फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। So first was the believing and the confessing, and after that was the water baptism. देखिए, पहला मन में believing and the confession, पहला है मन में विश्वास करना और अंगीकार करना, and then the water baptism. और उसके बाद में पानी का बपतिस्मा। It's not water baptism first and then you do believing in confessing. ये नहीं कि पहले बपतिस्मा लेना फिर उसके बाद में विश्वास और उसके बाद में अंगीकार करना। You understood? That is not the case. ये तरीका नहीं है। Yeah, so the whole teaching about child baptism is thrown out of the window. So अब बच्चे का बपतिस्मा हम उसके खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। You understood? Because the order is you believe in your heart, confess with your mouth, you are saved, and the born again believer does the water baptism. So तरीका क्रम क्या है? एक विश्वासी सुसमाचार सुनता है, विश्वास करता है, उसको अंगीकार करता है और उसके बाद में वो पानी का बपतिस्मा लेता है। Let's take Acts chapter 2 verses 42. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 पद। Let's look at that. आइए उसको Verse 40. 41. 41 पद। अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन 3000। ओके, यस। So it says here first वचन ग्रहण किया, फिर बपतिस्मा किया। देखिए कैसे लिखा है, क्रम क्या है? उन्होंने पहले वचन ग्रहण किया और उसके बाद में बपतिस्मा लिया। You understand? When you receive the word and you accept Jesus Christ as your Lord and Savior and you confess with your mouth, then as a sign of the inward work, you get baptized. So आपने वचन पहले सुना और फिर विश्वास किया, अंगीकार किया और फिर आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जो आंतरिक विश्वास है उसका प्रकटीकरण। Understand? So
So what we have understood and studied now is we are saved first and then baptized. सो हमने क्या सीखा? पहले हम बचाए जाते हैं और उसके बाद में पानी का बपतिस्मा। And water baptism is a commandment of the Lord. और पानी का बपतिस्मा लेना परमेश्वर की आज्ञाओं में से है। And we follow the footsteps of Jesus. और हम यीशु मसीह के पद चिन्हों का ही अनुसरण करते हैं। We follow that Jesus took water baptism. We also take water baptism. और यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, हम भी लेते हैं। Understand? I hope this helps you today. सो मैं विश्वास करता हूँ ये आपकी मदद करता है। So, Brother Peter, if you want, we can pray and we can conclude the class. ओके, आइए हम लोग आज के सत्र को आज हम खत्म करेंगे। आज बपतिस्माओं में से दूसरे भाग को हम देखते आए हैं और मैं सोचता हूँ इस खंड को आप बड़े भली भांति समझ रहे थे, सीख रहे थे। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कैन यू प्रे फॉर अस पास्टर? Yes. Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम में thank you for this time of the study of the word, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के शिक्षा के इस समय के लिए, especially as we understand the foundational truth, foundational doctrine of our Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के मूलभूत सिद्धांत के विषय में जब हम समझ ले रहे हैं, Especially baptism. और खास तौर पर बपतिस्मा के विषय में, We pray today that the eyes of our understanding हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन के ज्योतिर्मय होने से be enlightened, कि हम प्रकाश पाएं, मन आंखें खुलने के द्वारा प्रकाश पाएं, that we may know the hope of our calling, कि हम हमारी बुलाहट की आशा को जानें understand who we are in Christ, और जाने समझे कि मसीह में हम कौन हैं, how the riches of his glory, of his inheritance in the saints, और जाने कि उसके साथ में उन पवित्र लोगों में हमारी क्या मिरास है। yeah, so the supply that we have in you, और जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए प्रबंध है, and the exceeding greatness of the power of God that's available to us. और उस महान सामर्थ को जो हमारे सबके लिए उपलब्ध है, Lord, that is available to us, the believers, और वो हम जो विश्वास करने वाले हैं हम सबके लिए, because we are baptized in that one body. क्योंकि हम उस एक देह में बपतिस्मा प्राप्त किए हैं। Yeah, Lord, we thank you for your name. हम धन्यवाद करते हैं तेरे उस उच्च नाम के लिए। Thank you for the authority in the name. धन्यवाद करते हैं उस नाम में जो अधिकार है। Thank you for the blood of our Lord Jesus Christ who has cleansed us from all unrighteousness. धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का वो पवित्र लहू जो हमें सारे अशुद्धता से हमें साफ करता है। Thank you, Lord. Thank you, Father, for the joint seating with Christ in heavenly places. धन्यवाद करते हैं यीशु के साथ में बिठाए जाने का भाग के लिए। Help our understanding grasp this reality, Lord, और हमारी समझ और इस सच्चाई को जानने के लिए हमारी सहायता करें, that we are far above all principality, power, and dominion. कि हम उन सारी प्रधानता और दुष्टता की सेना के ऊपर हैं, Yeah, that they are way under our feet. कि वे हमारे पैरों तले कर दिए गए हैं। Help us to see this reality in Christ, Lord. और इस सच्चाई को यीशु मसीह में समझने की सहायता दे, So that we would be more effective for you, Lord. कि हम तेरे लिए और अच्छे से काम करने वाले हों, That we would operate in authority and in power. कि हम अधिकार और सामर्थ्य में इस्तेमाल किए जाएं, That we would do the purpose, we would do the works that you have preordained for us before the foundation of this world. और इस संसार की नींव रखे जाने से पहले जो हमारे लिए आपने निर्धारित किया है उन चीजों को कर सकें, That we would bring glory to your name. कि हम तेरे पवित्र नाम को महिमा ला सकें, That we would be a good witness of your goodness and glory. और आपके अच्छे गवाह और आपकी महिमा के गवाह हो सकें।
Lord, we ask this in Jesus' name. ये हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्रभु। Amen. आमीन।